बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे। मेरे पुख्ता इरादे खुद मेरी तकदीर बदलेंगे। मेरी किस्मत मुताज नहीं हाथों की लकीरों की। Starting with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent. Assalamu alaikum, our guest speaker and all the participants in the meeting. This is Sari Shanif, who warmly welcome you all in this event. As you all are already familiar with this emerging society or organization, that is Zabia Dietetic and Nutrition Organization. But today the guest of honor and speaker is a great privilege. I know this one is difficult, but the thought that he is a man of virtue and simplicity. I feel elated to introduce him to everyone in today's event. After all, he is a living personality to everyone, to young ones. He is none other than but Dr. Tusif Iqbal Khan. He is expert in nutrition psychologist, wellness coach, and weight loss expert. He would aware us today on personalized nutrition and future aspect. Sir, you can start this webinar. Thank you. Okay, thank you so much, Miss Navish, for giving me such a kind introduction of me. And thank you so much, all of you, for joining me. And it's a really honor for me and good opportunity for me to interact such a delightful mind such as RDNO. They just requested me, sir, we want to have a webinar with you, and they are doing great. Keep it up, team RDNO, and all the participants in this field of nutrition and other healthcare specialization. On my behalf, what I have to say, this is the most important topic because in early days and in past days, what we have all times, nutritional management in different diseases, nutritional management in Ramadan, and the diabetes management. A lot of lectures are there, a lot of videos are there on YouTube channels. But now, thing is that many of my students asking me, sir, what are the future of nutrition? What are the basic requirement of the nutritionist in the country? And what is the next advanced level of nutrition? This is the advanced level of nutrition. This is called as a personalized nutrition. Now, you know that uh, I'm telling you already that almost billions of dollars, Nestle is spending billions of dollars on personalized nutrition. Now you can understand that this is the most advanced form of nutrition. In even a doctor cannot beat this. A pharmacist cannot beat this branch. And none other microbiologists and other biological sciences can beat this science, which is called as a personalized nutrition. So thank you so much again, all of you, for joining me. So I have a photo in front of you representing a plate having one knife and one fork. What thoughts come in your mind? Any student from your side? I want to listen one student from your side. So what thought coming in your side by seeing this photograph having I think so multiple grains and plate and fork and knife? Any nutritionist? I think so you are not allowed to unmute yourself anyhow. This is the basic thought of the personalized nutrition. What you are eating, it is a part of your DNA. It impacting your DNA. It impacting your all the genetic genotype. It impacting your phenotype. And what happens obviously when gene is disturbed, when gene is mutated, when gene is interacted, obviously the whole mechanism called central dogma is influenced under the nutrient you are taking. So जो कुछ भी खाओगे वही वो आपके डीएनए को इफेक्ट करेगा. अगर आपका डीएनए इफेक्ट हो रहा है तो इस मीन का आपका बॉडी का पूरा फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है. एक सिंपल सी मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल बाय सीइंग द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास क्या है कि हमारा ब्रेन है, जितने भी हम लोग न्यूट्रिएंट लेंगे वट एवर वी आर टेकिंग, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, एक्सरसाइज हो, कोई मेडिकेशन हो, या फिर हम लोग डाइट ले रहे हो, या फिर कोई भी अपनी डिफरेंट किस्म के इंजेक्शन हो, these all things have an impact on our brain,
अगर इम्पैक्ट ऑफ ब्रेन है तो किसके लिए, तो इट विल कॉज द मैनेजमेंट ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। समटाइम क्या हम लोग जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, अपनी डाइटिंग मॉडिफिकेशंस कर रहे होते हैं या एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए कि हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म जो है, जो चेंज हो चुका है, जो डिस्टर्ब हो चुका है, उसको ठीक करने के लिए we are using these type of activities, we are using these factors। समटाइम क्या करते हैं हम लोग, किसी डिजीज उसकी कॉम्प्लिकेशंस को कम करने के लिए। थर्ड टाइप हम क्या करते हैं हम लोग, डाइटरी इंटरवेंशंस को कंट्रोल करने के लिए ये इंटरवेंशंस की जाती हैं। और लास्ट टाइम for obviously delivering the eating behavior, mean what you are giving to your brain, it will reflect in your body, it will reflect in your body। फॉर एग्जाम्पल अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आसान सी, वन वाइटामिन डीएनए, एक वाइटामिन डीएनए की डेफिशिएंसी विल इफेक्ट द 200 जीन्स एक्सप्रेशन almost। If we say that the 200 gene expression is under control of vitamin D, तो आप खुद सोचेंगे अगर विटामिन डी की कमी हो जाए कि 200 जीन का प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं होगा, और 200 जीन का मतलब है 200 बॉडी के फंक्शन, और 200 बॉडी का फंक्शन मतलब है 200 सिस्टम्स के अंदर फंक्शन चल रहे होते हैं, तो बॉडी के 200 सिस्टम्स कंप्रोमाइज हो चुके होंगे सिर्फ ओनली बाय डेफिशिएंसी ऑफ वन न्यूट्रिएंट कॉल्ड एज अ विटामिन डी। दिस इज कॉल्ड द पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन कि नाउ यू हैव टू फोकस ईच एंड एवरीथिंग कि what you need, it is a necessary you must have in your diet। I think so the capacity of the Zoom has been fulfilled, so the Kumari, you have to tell them you have to see a recording of this webinar, and it's not possible to make them add anymore. Anyhow, back to lecture. So I was just talking about the any nutrient in our body you're taking in a diet is affecting your whole body functioning। This is called personal nutrition कि जो कुछ भी खाओगे वो आपकी बॉडी का हिस्सा बन रहा है, तो आपकी बॉडी को डिस्टर्ब करेगा। So by seeing the next slide, what is the working definition of a personalized nutrition? This is basically a recommendation of a dietary behavior। आप क्या कुछ खा रहे हैं उसके लिए से कैसे बिहेव कर रहे हैं। I think so there are some bodies अंबर अपना माइक को म्यूट करें बच्चे। ओके, पर्सनलाइज्ड की अगर हम डेफिनेशन करें, द रिकमेंडेशन ऑफ अ डाइटरी बिहेवियर दैट अप्रोप्रिएट फॉर इंडिविजुअल फॉर मेंटेन ऑप्टिमल हेल्थ। अब थिंग इज दैट के दो चीजें हैं भैया, एक होता है डाइटरी पैटर्न, एक होता है डाइटरी। दो चीजें ही पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन में है, क्या कुछ लेना है और कैसे लेना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या कुछ लेना है मतलब क्या कि कितने न्यूट्रिएंट कितनी अमाउंट में, कितनी सर्विंग साइज, कितनी अमाउंट, कितने मिलीग्राम्स, कितने एमएल पानी कितना लेना है आपने, माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने लेने, मैक्रो न्यूट्रिएंट कितने लेने, ये इनटेक है। किस टाइम पे लेना है, किस तरह से लेना है, लंच में क्या कुछ लेना है, ब्रेकफास्ट में क्या कुछ लेना है, और आपके डिनर में क्या कुछ। दिस इज कॉल्ड पर्सनल न्यूट्रिशन व्हिच मेक एन एवरीबॉडी पर्सन। इट टेक्स इन काउंट द इंडिविजुअल डाइटरी हैबिट, lifestyle patterns and preferences, what he prefers। It also affect the phenotypic, मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, what you are taking it will represent in your phenotype। This is important। जेनेटिक बैकग्राउंड, कोई भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं आपके न्यूट्रिशन को, जीन को इंटेक्ट कर रहा है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए what we devise about the food choices, eating pattern and lifestyle pattern and the nutrient and health, the complete branch of a science called as a personalized nutrition। कि इंसान को क्या कुछ खाना है, उससे बॉडी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और बॉडी किस तरह से बिहेव करेगी। दिस इज कॉल्ड एज अ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के अंदर दो बेसिक ब्रांचेस है मेरे बच्चे, एक है न्यूट्रीजीनोमिक्स, एक है न्यूट्रीजेनेटिक्स। इसको हम लोग इंशाल्लाह हमारे कॉम्प्रिहेंसिव एक वेबिनार भी है, एक वर्कशॉप भी है। वी आर प्लानिंग विद यूनिवर्सिटी ऑफ रेडिंग, द मोस्ट कह सकते हैं दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी के साथ हम लोग जो दुनिया में जो न्यूट्रीजेनेटिक्स पे काम मत कर रहा आदमी, उसके साथ हमारा एक वेबिनार भी है, उसके साथ एक वर्कशॉप भी है। इंशाल्लाह आप सबको उसमें इनवाइट किया जाएगा वेबिनार में भी। तो what is the nutrigenetics, what are the nutrigenomics, the next branch। nutrigenomics as come in mind के न्यूट्रिएंट का जीन पे या जीनोम पे क्या इम्पैक्ट है, पूरे जीनोम पे। the science how food affect our gene, how individual genetic differences can affect the way of respond। एक बंदा दोनों खुराक सेम खा रहे हैं, लेकिन एक की हाइट बहुत अच्छी हो रही है, एक की हाइट अच्छी नहीं हो रही, भाई क्या इम्पैक्ट है भाई, फूड सेम है, एक जैसी है, तो why not gene expression is a slow down,
तो इसका मतलब है कोई ना कोई फैक्टर है। किसी भी न्यूट्रिएंट का किसी भी बॉडी के जीनोम के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशनोमिक्स। बेटा नेक्स्ट पढ़ना चाहिए। द एसेंस ऑफ पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन के कौन-कौन से प्रॉपर्टीज हैं, बेसलाइन क्या है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की, मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं और बिहेवियरल फैक्टर्स हैं। दो चीजें हैं जो बेसलाइन है पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन की। मेटाबॉलिक फैक्टर्स, इफ यू गो फॉर देम, ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज द बायोलॉजिकल स्टेटस, कि उसका फिजिकल कैसा नजर आ रहा है, वो स्ट्रक्चर कैसा है उसका, बॉडी की फिजिक कैसी है, उसका वेट कैसा है, जेनेटिक्स उसकी क्या है, फिजियोलॉजिकल बायोमार्कर उसकी बॉडी नजर कैसे आ रही है। ऑल दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिक फैक्टर्स, जिसमें हमें मेटाबॉलिज्म नजर आ रहा है कि बॉडी के अंदर कोई सिस्टम डिस्टर्ब तो नहीं है। बिहेवियर कैसा है उसका, न्यूट्रिशन बिहेवियर क्या है, मतलब क्या है, कौन सी चीजों को लाइक कर रहा है, कौन सी चीजों को नहीं लाइक कर रहा। ईटिंग पैटर्न क्या है, सुबह खा रहा है, शाम खा रहा है, रात को खा रहा है, या नहीं खा रहा है, एक टाइम खा रहा है, दो टाइम खा रहा है। दिस इज आल्सो इम्पैक्ट ऑन आवर न्यूट्रिशन। एंड लाइफस्टाइल क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज कितनी है उसकी, साइकोलॉजिकल फैक्टर तो नहीं है उसके ऊपर, कोई डिप्रेशन तो नहीं है, इमोशनल तो नहीं है बहुत ज्यादा, वो कोई ऐसा मसला नहीं हो गया उसके अंदर अर्ली एजेस के अंदर जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा इमोशनल है, जिसकी वजह से उसका जो फीटिंग पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। सोसाइटी का कोई इम्पैक्ट तो नहीं है, पीयर प्रेशर तो नहीं है। फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड इज गोइंग टू ऑब्वियसली बर्गर किंग, तो मैं उसके साथ जाऊंगा तो आई फील लाइक ओके यार, ये अगर ये बर्गर किंग खा रहा है तो मैं भी इस से कुछ खाना शुरू कर दूं। अगर मेरे पास नहीं भी है तो मैं उसको अडॉप्ट करना शुरू कर दूंगा आदत को। तो सोसाइटी की वजह से मेरा बिहेवियर डेवलप हो रहा है। तो ऑल दीज थिंग्स इज बेसलाइन ऑफ द पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन। अब क्या होगा, चाहे वो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हो चाहे वो बिहेवियरल फैक्टर्स हो, वो डिस्टर्ब किसको करेंगे, हमारी प्रोफाइल को, हमारे पैटर्न्स को, हमारी बॉडी को, हमारी पूरी की पूरे फिनोटाइप को डिस्टर्ब करेंगे। कैसे, कि हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी फीडिंग पैटर्न्स लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारी परफॉर्मेंस है एंडोरेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हमारे ब्यूटी लेवल्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, और जो पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है उनको डिस्टर्ब कर सकते हैं। व्हाट यू ईट विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ फिनोटाइप। जो कुछ भी खा रहे हो मेरे बच्चे, ये आपका चेहरा आपको बता देगा। इफ यू आर ऑन हेल्दी डाइट, चेहरा आपको बताएगा कि हेल्दी डाइट के ऊपर है। इफ यू आर नॉन हेल्दी डाइट, तो चेहरा आपका इंडिकेटर है, कि जो आपको बताएगा, आपकी बॉडी की इंडिकेटर है जो आपको बताएगी कि भाई आप हेल्दी डाइट की तरफ नहीं है। अगर इसकी बेस्ट एग्जांपल लूं, आप लोग कभी शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप को देखिएगा और अपने पैटर्न्स और अपने फिजिकल स्टाइल को देखिएगा, तो यू विल सी द रिजल्ट्स, कि आप लोग अंदाजा कर लोगे कि आपके डाइटरी पैटर्न्स की वजह से आपकी बॉडी फिजिक कैसे हो गई है। आपके काम ना करने के, अपने आप को लेजी रखने की वजह से, अपने आप को समझने की वजह से, मुझे कुछ नहीं ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है कि जिसमें थकन हो जाए, तो उसकी वजह से देखिए आपकी बॉडी कहाँ तक पहुंच चुकी है, कितनी लीन हो चुकी है। थिंग इज दैट कि द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन इज अ मिरर। उसको क्रिटिकल देखेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ते हाँपने शुरू हो जाते हैं। We feel like that we are tired and why? Taking energy, your body is for working purpose, endurance. So thing is that your physical, behavioral, metabolic and dietary factors are affected. Mean the person, your nutrition is affected. So obviously तो हमें किस चीज पे कोचिंग करनी चाहिए, आपकी इफेक्टिवनेस के ऊपर, कि आप अपने आप को कैसे नजर आना चाहते हो। A nutritionist, a good nutritionist is that person who represent itself that I am a nutritionist, or I am a nutritionist is a term that you have to look like a nutritionist, you have like a fitness trainer, you have to look like, देख आपको देख के लोग इन्फ्लुएंस लें। आपसे सल्लम के एक मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। आई वाज जस्ट लिसनिंग मुफ्ती तारक मसूद, अल्लाह ताला के हमेशा माफ फरमाए, आई एम जस्ट कोटिंग द कोटेशन, द पायस पर्सन। तो उसने क्या कहा था कि आपसे सल्लम जब भी किसी वफूद को भेजा करते थे किसी भी बादशाह के पास, तो उसके जो बंदा होता था, जो उसका सफीर होता था, बड़ी वजाहत वाला होता था, बड़ा ताकतवर, बड़ा खूबसूरत होता था। आपसे सल्लम के दौर में एक शख्स था, बड़ा खूबसूरत सहाबी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। तो उनको रोम की तरफ भेजा गया। इतने खूबसूरत थे कि हज़रत अली के दौर में उनको मदीना आने की पाबंदी लगा दी गई, कि इसकी वजह से कोई ऐसा ना हो कि औरतें अपने आप को अ, माइल कर लें इसकी तरफ, इतने खूबसूरत थे। तो दिस इज़ द वे, कि आपसे सल्लम ने बताया है कि इफ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देखो कि मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोगों के सामने। इफ यू आर डायटीशियन, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं डायटीशियन हूँ। इफ यू आर पर्सनल ट्रेनर, यू मस्ट नो आई एम द पर्सनल ट्रेनर, योर बॉडी रिप्रेजेंट लाइक दैट। आपकी ड्रेसिंग, आपकी बॉडी सेंस, आपके बोलने का स्टाइल, आपका ईच एंड एवरीथिंग, आपकी फ्लुएंसी, ईच एंड एवरीथिंग रिप्रेजेंट योर पर्सनैलिटी। सो
best thing what I recommend today for you people that get personal yourself as a person कि the first thing जो आपके पास है वो आपकी body है जिसको आपने modify करना है to make other people adhere towards you. So dual direction है personalized nutrition का, significant improvement है obviously tools and the coaching approaches हैं, मतलब क्या है कि एक हम लोग awareness sessions भी होनी चाहिए, उनके assessment भी होनी चाहिए, genetic background क्या है उस person का, क्या वो कम height का है, ज़्यादा height का है, उसका color black है, white है या mid में brown है या पाकिस्तानी है, उसकी food preferences क्या है, metabolic profile क्या है उसकी, कोई metabolism disturb तो नहीं है उसका, thyroid तो disturb नहीं है उसका, हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म तो नहीं है, क्या इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कोई ऐसे फैक्टर्स तो नहीं है जिसके इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे कि इन पाकिस्तान वी आर इन द टॉप 10 कंट्रीज व्हिच आर बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द एनवायरमेंटल चेंजेस। एनवायरमेंटल चेंजेस का मतलब हमारे पास पाकिस्तान में हर तरह की रेडिएशन से एक्सपोज्ड है, तो हमारी बॉडी में जेनेटिक म्यूटेशन आ चुकी हैं, तो उसका क्या असर होगा, एवोल्यूशन ओवर टाइम, क्या हमने अपने आप को एवोल्यूट किया नहीं किया, ये दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एवोल्यूशन ओवर टाइम। Is it possible? Yes, it is. By using the food and lifestyle pattern. पाकिस्तान में हाइट बहुत अच्छी थी, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान community has जो young community थी, it very has a very good height and body posture. Obviously they were not stunting. अब देखा जाए तो अब तो almost all persons are stunting in Pakistan. तो पाकिस्तान की जो हाइट थी वो almost 4 से 5 इंच with evolution by these factors वो कम हो चुकी है। अब हमारे पास 5'2" हाइट अगर फीमेल की हो तो कंसीडर करते हैं कि यस वी आर द आइडियल हाइट। तो पहले ये था कि 5'6", 5'7", 5'8" भी हो तो आइडियल थी, लेकिन क्या हो कि वो एक गैप आ चुका है कि टाइम के साथ साथ एवोल्यूशन, हम लोगों ने एवोल्यूशन करने के बजाय अपनों को डी एवोल्यूट किया है, हमने अपनी हाइट गेन करने के बजाय हाइट को लॉस किया है। व्हाट इज एवोल्यूशन? इट इज इन चाइनीज। आपको याद होगा चाइनीज को हम जब भी कंसीडर करते थे, दे आर विद लिटिल आईज विद लिटिल पोस्चर, दे आर स्टंटिंग, यार छोटे से कद के होंगे और इनकी छोटी छोटी आईज होंगी। अगर आपको पता हो कि दीवारें चीन का आपने कभी कंसेप्ट सुना हो, द वॉल ऑफ चीन, द ग्रेट वॉल ऑफ चीन, why it was constructed? It was constructed because these peoples were stunting. तो कोई भी लोग आते थे जो ताकतवर थे, जो एशियंस थे, जो अफ्रीकन थे या यूरोपियन थे, वो आते इनको लूट के ले जाते, क्योंकि ये मेहनती कौम थी शुरू दिन से। तो इन्होंने एक दीवार कंस्ट्रक्ट की कि अपने आप को बचा सके। तो ये इंडिकेट दैट कि ये स्टंटेड, उनको हम नहीं देख सकते कि उनकी स्टंटिंग कैसी नहीं है। नाउ दे आर द टॉलर। अब कभी भी किसी भी चाइनीज का छोटे कद का नहीं देखोगे, दे आर द टॉलर, दे 5 to 6 इंच उन्होंने हाइट गेन कर ली है बाय चेंजिंग देयर फूड पैटर्न्स, बाय चेंजिंग द लाइफस्टाइल, बाय अडॉप्टिंग द एक्सरसाइज। वेले बैठ के नहीं, काम करके उन्होंने अपने आप को डिफाइन किया। नाउ दे आर टॉलर एंड वी आर द शॉर्टर। और पाकिस्तान में आने वाली जो नस्ल है वो तो वैसे ही शॉर्ट हो चुकी है कि 47% जो हमारी आने वाली नस्ल है कि वो शॉर्टर है। So across categories, consumers demand personalized nutrition tailored to their lifestyle and the preferences. हर person की जो choice है वो different है, हर person की activities different है, house job के लिहाज से, ऑफिस जॉब के लिहाज से, एथलीट के लिहाज से, हर एक की जो बॉडी पैटर्न्स हैं, they will be the different. Meanwhile, there is an increasing link of the food and health and the tackling themselves more than ever. और आजकल से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है in the form of nutrigenetics or the nutrition genomics. With excessive shift, they expect the perfect fit. Yet today's nutrition remain as a one size fit for all system. ऐसा नहीं है कि एक बंदे की जो न्यूट्रिशन वो सबके लिए फिट हो। Every person has a different patterns, every person has a different lifestyles. तो उसी के लिहाज से हम लोग डिफाइन करते हैं कि उसको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ टाइम टू पर्सनलाइज न्यूट्रिशन। यहाँ पे 5 कलर की सेब हैं, लेकिन जो मुझे चाहिए दिस इज दिस वन, मैंने चॉइस किया इसको, तो दिस इज अ गुड वन फॉर मी। तो चॉइस, हैबिट, प्रेफरेंसेस, what our body need, all these things are in the time of a personalized nutrition. So personalized nutrition to the whole person कि किस चीज को इफेक्ट करेगी, आपकी डिजीज को, जेनेटिक को, जेंडर को, एज को, इन्वायरमेंटल को, इमोशंस को, बिहेवियर को। मैं ये कह सकता हूँ कि पर्सन हु इज वीपिंग कंटिन्यूअसली, जिसका भी बहुत करीबी मर गया है, मैं उसको बाय यूजिंग डाइट में उसको हंसा सकता हूँ। पर्सन, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि जो कि बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, बाय यूजिंग डाइट हम उसको रुला सकते हैं। तो दिस इज द न्यूट्रिशन कि आप डाइट के जरिए उनको रुला भी सकते हो, उनको हंसा भी सकते हो।
Yeah, this is a pattern कि आप किसी को इमोशन भी कर सकते हो, किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल सम बॉडीज आर फीलिंग डिप्रेस्ड, सम बॉडीज फीलिंग डिप्रेस्ड, वो कुछ अच्छा बनाना, मीठा बनाना शुरू कर दो, लिटरली डिप्रेशन दूर हो जाएगा. यूजिंग सम चॉकलेट्स, बेहतर हेल्दी डाइट की तरफ आना शुरू हो जाए, उसका मीठा दूर हो जाएगा. कुछ पॉजिटिव एक्टिविटी करना शुरू कर दे, उसका जो डिप्रेशन है वो दूर हो जाएगा. तो दिस इज द थिंग कि फूड आपकी ईच एंड एवरीथिंग को कंट्रोल कर रही होती है. तो साइंटिफिक एडवांसमेंट क्या है उसकी ईच एंड एवरी पैटर्न्स क्या होंगे, ये हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर सकते हैं आजकल कि कौन provider we or do dietitians and consumer all over the community, and nutritional genomics enable the analysis of the phenotype and genotype. और यही चीज जो है आपकी phenotype और genotype को डिस्टर्ब कर रही होती है. My voice is not clear yet. Hello everybody. Okay, now it's good. Okay, thank you, thank you, thank you. Okay, what is the advancement in the personalization? Obviously कि आज हम लोग genetic test के जरिए अंदाजा कर सकते हैं कि आने वाले उस person के अंदर कौन-कौन सी disease हो सकती हैं और कौन-कौन सी diseases को free किया जा सकता है. And this is a branch of nutritional genomics कि एक person की phenotype कैसे होगी, उसकी genotype कैसे होगी. So modifying the food achieves target nutrition profiles, obviously by changing the food patterns, by eating patterns, by giving the good nutritional intakes, we change the nutrition profile of a person, either male or the female. So what is the thing that the firms are beating back now? भाई इसके ऊपर bet हो रही है. Nestle has invested nearly to $50 billion in personalizing nutrition. This is the nutrition. Nutrition वो नहीं है कि हमने किसी disease को manage कर लिया. This is the little सभी हकीम भी काम करता है भाई, ये डॉक्टर भी काम कर रहा है किसी भी nutrition के लिहाज से, किसी भी disease के लिहाज से. You have to think abroad, you have to think broader. कि आपने अपने जो लेवल से निकल के आगे आना है, तभी आप लोग इस लेवल पे आएंगे मेरे बच्चे. अगर आप लोग नहीं सोचेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी. जो दुनिया है बहुत आगे जा चुकी है. वर्ल्ड इज गोइंग a lot of advancement in the field of nutrition. आप खुद बिलीव करेंगे $250 million investment only Nestle is doing. Then what about the Abbott Nutrition? It also doing a lot of billions dollar investment in personalized nutrition. जितनी भी प्रोडक्ट है, आपको कोई भी ले लो, एबर्ट पर्सन के लिए, किसी पर्सन की न्यूट्रिशन बेहतर करने के लिए, पर्सनलाइज्ड न्यूट्रिशन, एंड दे अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी. सो बेटा यू हैव टू थिंक क्रिटिकली अबाउट योर फील्ड. यू हैव नॉट टू थिंक कि आप लोग सिर्फ इस तरह की फील्ड में रहें कि बस जिसमें कुछ भी नहीं आगे. नो, ये फील्ड सब फील्ड का फादर है, ये फील्ड सब फील्ड की मदर है. You have to consider it. So there is a 3 takeaways जो आप आज ने लेना है. Personalized nutrition will take root, disrupt the industry and available all. Yes, ये इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है. ये पूरी की पूरी आपकी फार्मास्यूटिकल न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर सकता है by changing the food pattern. Second, food and health industries will converge to serve the consumer. और हाँ, फूड इंडस्ट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है और वो कंज्यूमर से अन्य वो पैसा कमा रहे हैं. थर्ड, companies that take the action now will lead the future. Obviously जिन्होंने पर्सनल न्यूट्रिशन में काम कर लिया, now they are the future. We see that there are two future now we are seeing in Pakistan, Abbott Nutrition and the Nestle, because they are spending billions on the personalized nutrition. I have a lot of slides others in which we know that what Hippocrates said about our field nutrition, what is the balanced diet pyramids, and we have two patterns, what is the family health risk, why it's a risk, and what are the nutrients act as a dietary signals. You have to see this slide very attentively. What you nutrition factors obviously going to transcribe the transcription factors, and transcription factors are going to affect the nutrition of gene transcription.
When gene transcription is impacted, what will impact it? The metabolism impacted. Which metabolism? Cell proliferation. More cell proliferations, more cell growth. Energy homeostasis. More energy homeostasis, more energy needs. Nutrient absorption. More nutrient absorption, so more well growth of your body. So each and every nutrient in our body is influencing your the genetic profile. So you know very well all these things. I'm just going to for these two definitions. One is a nutrigenomics, and what second is a nutritional genetics. Both are the between the personalized nutrition. Both are infected. And we see that genetics impact of genes on nutrient intake and the food impact on the genome is a genomics, and both are in part of that personalized nutrition. So let's see what is the difference between genomics and genetics. Aim to study the genome-wide influence nutrition, concerned with how genetic variation determine individual disease risk, nutrient requirement, how much metabolism. If a person has a higher metabolism, hypothyroidism, why he needs much amount of energy? Why hypothyroidism? Why hyperthyroidism? Because because gene is expressing a lot. Gene is expressing a lot. Nutrient intake is a lot. Nutritional genetics. What food you are taking impacting your gene, nutritional genomics. So both are these are the part of the personalized nutrition. Many other factors are taking part of this personalized nutrition. So what I say that what is nutritional genomics in a summary, you know that the nutrient you are taking, it will go in your cell, going to DNA, in your nucleus, transcribe the DNA, convert into mRNA, making proteins and functions. Many functions are there. They may impact the disease. They may impact the disease prevention, disease treatment. They may impact your healthy profile. Which are the bioactive compound in food which impact your influencing? Like that, bioactive compound of food can go for the hormone regulations, can go for the cell proliferation. Let me see what are the. Okay, thank you so much. Bioactive compounds for DNA repairing, for the apoptotic cells life, for the cell growth recycles, for the inflammatory responses, and for the carcinogenic metabolism. So bioactive compound of food are influencing your whole the functioning of a body. So if you are taking a food, think it is your the best thing which impact your all the body metabolism. अब नजर नहीं आएगा, बुढ़ापे में जरूर नजर आएगा. भाई जवान होते वो ठीक है, बुढ़ापे में चला भी नहीं जाता. ऐसा क्यों है? बिकॉज जो जवान होते आपने खुराक खाई थी वो आपने देख के नहीं खाई, और उसकी वजह से क्या हुआ कि आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम आ चुके हैं. गर्ल्स, देयर इज अ हार्मोन रेगुलेशन आल्सो इन्फेक्टेड बाय योर फूड. बॉयज, the cell proliferation is also impacted by your food. एपोप्टोटिक लाइफ, आपकी एज जो है पूरी की पूरी एज जो एजिंग जो प्रोसेस होती है, इट इज इंपैक्टेड बाय द बायोएक्टिव कंपाउंड ऑफ फूड. द थिंग इज दैट यू हैव टू कंसीडर कि व्हाट आर द डाइटरी फैक्टर्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द डीएनए methylation. Each and everything what you eat obviously go for the DNA and change in the DNA. So bioactive compound of foods, if we see the obviously they will impact the DNA, then RNA, then protein and the metabolite, and all these are things are representing your actions. This is what about the nutrient and why they're impacting the our genome. Why I'm not going so deep in this branch, because for you peoples, we have an international webinar on nutrigenetics, the future of nutrition, with the University of Reading, the world, and with the top professor of the world in a nutrition on coming Sunday at 3 o'clock. You all are requested to join this webinar because this webinar is a part of our workshop, which is be held very soon. Nutritional genetics, personal nutrient, any gene impact your DNA, and you will get certified for not your webinar, but for workshop. Thank you so much, all of you, for joining me these sessions. Any information needing regarding this webinars, you can contact the professionals. For this workshop, for webinar, I need two persons, two teams, two people are
many people, one in category of management and second category of in certification body. So if you are interested in giving your sacrifices or giving your contributions in this workshop, we'll give you certification of the management skills too. Thank you so much, all of you, for joining this session. Any questions regarding this, you can ask. Which e-certificate? Today's? Okay, registrations will be the group. Okay, let me complete. For the registration purpose, you will send a link in the RDNO group and other links. If you need more information about this, you can note down my contact number given at the end of slide. Like it is a 322-44-373. You can contact me personally. Okay, any questions regarding today's session? पार्टिसिपेंट्स जिसका कोई भी क्वेश्चन है वो चैट में सर से पूछ सकते हैं। मुझे वेट लॉस के लिए आजकल तो आपके पास रमजान है, आप बहुत अच्छा अपना डाइट प्लान फॉलो कर सकते हैं। यस यार, आई वांट टू टेल यू पीपल कि रमजान का मतलब फास्टिंग है, इसको फास्टिंग रहने दें। हमें पता नहीं है कि आप लोग क्या करते हैं कि सहरी के टाइम इतना खा लेते हैं कि भी पूरा दिन क्या, अगर आप रात को भी खाना ना खाएं तो भूख ना लगे। तो खुदा के लिए कि सहरी के टाइम उतना खाना खाएं कि आपको असर के टाइम भूख लगनी शुरू हो जाए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आनी वो चेंजेस आना शुरू हो जाए। सहरी आपकी बॉडी थोड़ी सी फास्टिंग कंडीशन में जाए, तो ये गलत बात है कि आप लोग बहुत ज्यादा अपने आप को भर लेते हैं। तो ये बॉडी आ रहे होते हैं ना फायदे, तो वो कोई फायदा नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस आप बॉडी को फास्टिंग में ना लेके। और फास्टिंग का मतलब है थर्स्टी एंड हंग्री। तो इतना खाना खाएं कि आपको असर के टाइम भूख लग जाए और ताकि आप वेट करें आगे। यू कैन यूज हेल्दी, लाइक आप डिफरेंट किस्म के स्मूदीज इस्तेमाल कर सकती हैं ज़ैनब। लाइक आप एप्पल ले लें, उसको स्लाइस करके आप उसका पानी में उसको ग्राइंड करके या ब्लेंड करके उसमें 1 चम्मच शहद डाल के वो भी यूज़ कर सकती हैं। या तरबूज को इस तरह कर सकती हैं आप, इस खरबूजे को इस तरह कर सकती हैं। या डिफरेंट रेसिपीज बना सकती हैं आप। पकौड़े समोसे आप बना सकते हैं लेकिन वेजीज के, और वो भी चपटे नॉन स्टिक पैन के ऊपर। तो टी किस वक्त पी जाए रमजान में? व्हेन यू आर ईटिंग योर डिनर, जो भी है उसके 1 घंटे बाद टी को फौरन ना पिया जाए। डाइट ले सकते हैं जो एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रोडक्ट्स हैं वो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेरी एक्सक्यूज मी सर, मीटिंग एंड हो रही है इसलिए आवाज नहीं आ रही। ऑल द पार्टिसिपेंट, मीटिंग एंड होने वाली है, काइंडली सब लोग रिज्वाइन कर लें ताकि जिनके जो आंसर क्वेश्चंस हैं वो, जिन बच्चों के क्वेश्चंस हैं वो काइंडली चैट में लिख दें। सर अभी थोड़ी देर में आते हैं तो वो उनको आंसर्स कर देंगे। थैंक यू।
सॉरी फॉर वेटिंग गाइस, सर का थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया है, वो अभी थोड़ी देर में आ जाते हैं. Okay, everyone, I think so maybe there is some internet connect. Can I see your chats again? Because all chats are raised from my side. Okay, sir, एक इंसान है जिसे एग से एलर्जी है, he can take it not even in gene के, तो उसके जीन में ही ऐसा है जो tolerate through food. Okay, Yasmin, you have a question that a person have a egg allergy. एलर्जिक रिस्पॉन्सेज ऑब्वियसली जब वो होते हैं कि एग के अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो आपके जो जीन्स को, आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा होता है. अगर उस कंपोनेंट को निकाल दिया जाए, फॉर एग्जांपल यू हैव टू यूज द एग, फॉर एग्जांपल एग वाइट या एग अपने उसका जो येलो पोर्शन यूज करना है. द बेस्ट वन इज एग वाइट. एग वाइट यूज करके देखें, ऑब्वियसली देयर विल नो सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस. अगर आप देखेंगे उसमें एलर्जी नहीं था, वो पोर्शन इस्तेमाल कर लें. यस, आप जीन को चेंज नहीं कर सकते कि हाउ यू चेंज योर जीन, वो आगे वाली नस्ल का जीन चेंज किया जाएगा, लेकिन हाँ ये एलर्जी लीड करेगी. व्हाट इज द बेस्ट फूड फॉर द पर्संस हु आर हार्ड वर्किंग, ओनली 30%? ऑब्वियसली कोलेस्ट्रॉल फ्री, ओमेगा 3, ओलिव ऑयल उसको आप दे सकते हैं, उसको आप मेडिटेरियन डाइट दे सकते हैं, आप उसको मशरूम सूप दे सकते हैं, द बेस्ट वन. आप उसको साबूदाना की खीर दे सकते हैं, द बेस्ट वन. ओके, लेट मी सी नेक्स्ट वन. द वैक्सीनेशन के बाद डाइट फॉलो करनी चाहिए. What type of vaccination, Tareen? Anyhow, vaccination, it is an injection. What you are taking in vaccinations, you must take in some immunity booster diet like zinc, selenium, like fruits and veggies. You can take them. Attendance. Okay, Nestle baby products like baby powders, milk are healthier and safer. Because yes, if doctors or dietitians are recommending for you and they're good for the use, and you can see the labeling, then it's just safe to use. But not on your own choice. You have to consult with your consultant dietitian. Which test is available for the prescribing personalized nutrition? It is a genetic test. It is a very expensive. Okay. Sir, weight gain के लिए कुछ tips बता दें. Obviously, you have to go for the high proteins and high carbs diet with good exercising tips. For example, you have to nowadays आपके पास स्ट्रॉबेरी है, केले हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स हैं, जौ का दलिया है, इन सब का आप मल्टीग्रेन आटा है, इन सब को आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, अंडे कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन की फॉर्म में आप ले सकते हैं. इसको दही का इस्तेमाल किया जा सकता है, चनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि भुने हुए चने हैं या वैसे भी चने खाए जा सकते हैं. तो बेस्ट डाइट के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं डाइटिशियंस के लिए, बट दे आर द बेस्ट ऑप्शन के जो इजीली अवेलेबल हैं. हाई फाइबर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब भी आपने हाई प्रोटीन लेनी है तो हाई फाइबर का इस्तेमाल करें. बेस्ट डाइट फॉर किडनी पेशेंट, यू हैव टू recommend the kidney patient high fiber and the less protein and less sodium and potassium diet. तो ज़्यादा नमक नहीं है, ज़्यादा उनको प्रोटीन नहीं देनी, गोश्त नहीं देना, और कोशिश करें कि जो है उनको आप ऐसी डाइट देंगे जिसमें प्रोटीन नाइट्रोजन कंटेंट कम से कम हो, ताकि इम्पैक्ट हो. कोविड वैक्सीन मैं बता चुका हूँ कि ऑब्वियसली आपको वो डाइट लेनी है टेरिंग, जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जैसे फ्रूट हैं, वेजिटेबल्स हैं, या जैसे कि जिंक वाली डाइट्स हैं, उनको आप ले सकते हैं. सर, मेरी मदर को मल्टीपल फूड से एलर्जी है, तो क्या वो सब फूड एक्सक्लूड कर दें? नहीं, ऐसा नहीं है शीजागुल, ऐसा नहीं है कि वो मल्टीपल फूड से एक एलर्जी होता है कि इंटॉलरेंस होता है. कि व्हाट इज टाइप ऑफ एलर्जी, वो क्या फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्या उनके फूड पैटर्न्स डिस्टर्ब हो पड़े हैं, या उनको हीटिंग उनके हेल्थी पैटर्न्स नहीं है खाने के. तो पहली बात तो ये है कि आपको उनको देखना चाहिए कि उनका मसला क्या आ रहा है, तो डॉक्टर को चेक करवाएं, उनके टेस्ट करवाएं. अगर उनका इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है, उनके एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट कौन कौन सा फैक्टर है इस फूड के अंदर जो उसके एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है. दिस इज अ पर्सनल न्यूट्रिशन. मेरे बच्चे ये तो बताएगा
किस पर्सन को इस डाइट से वो है प्रॉब्लम है, तो उसको हम कैसे अंदाजा लगाएंगे इस पर्सन डाइट के अंदर कौन सा कंपोनेंट होगा। दिस इज द पर्सन न्यूट्रिशन। एक्सक्लूड कुछ नहीं करना, यू हैव टू चेक आउट द मदर के आपको उसका पूरा पूरा अपने चेकअप करवाना है, उसके टेस्ट करवाने हैं कि उसको फूड एलर्जी है या फूड इंटॉलरेंस है, उसके बाद उसको डिसाइड किया जा सकता है। न्यूट्रिएंट्स लीफी वेजिटेबल से एलर्जी है, एग से है, पीनट से है, डेट से है, 1-2 लेंटिल से है। आई डोंट नो कि व्हिच टाइप ऑफ द पेशेंट यू आर डिस्क्राइबिंग, बिकॉज़ समटाइम इंसान की अपनी चॉइसेस नहीं होती खाने की। इफ मल्टीपल allergic reactions are there, then you must consult your doctors too, your good practitioners, और after that the dietitians too। ये ज़रूरी है कि आपके टेस्ट किए जाएँ, ऐसे आपको अंदाज़ा नहीं होगा मेरे बच्चे। मेडिसिन जॉन्डिस पेशेंट वांट टू गेन मसल मास, व्हाट वुड यू रिकमेंड? पहले भई जॉन्डिस का ट्रीट करवाएँ वो, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं और मिल्क इस्तेमाल करें, गन्ने के जूस का इस्तेमाल करें और जूसेस लें और फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पहले जॉन्डिस का अपना ट्रीटमेंट करवाएँ, उसके बाद वो उसकी तरफ आएँ, वेट गेन की तरफ, वो वेट गेन खुद हो जाएगा। कम करना हो ना, ये ऐसा आसान तरीका होता है, जिसकी बेली कम करना हो जिसने, उसको जॉन्डिस हो जाए तो उसका बेली बहुत कम हो जाता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए सेहरी और इफ्तारी में क्या डाइट लेनी चाहिए? वही पैटर्न जो डाइट आप लोग पहले ले रहे हो, वही डाइट आप दोबारा ले सकते हैं। क्योंकि डायबिटिक लोग ये तो नहीं पूरा दिन में खा रहे होते हैं, पहले भी 2 टाइम खा रहे हैं, अभी 2 टाइम खाएँगे। लेकिन हाँ, उनके जो फूड के पैटर्न्स हैं, ये है कि उसमें बाद में आपने उबले हुए चाहे चावल दे दें उनको, चाहे उबले हुए आप उसको जौ दे दें, जेई दे दें या ओट्स दे दें, या फिर उसको ब्रेड को या रोटी को चॉप करके दही में, जो आपकी आखिरी पोर्शन है डाइट का इन शहरी, वो आप इस तरह दें कि उनको भूख ना लगे। और जो एंड ऑफ और फाइबर का इस्तेमाल करवाएँ, चाहे उनको ना दें। और अफ्तारी में आप उनको ऑब्वियसली डिफरेंट किस्म की हेल्दी शेक्स दे सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी शेक है, गुड फॉर द डायबिटीज, जैसे कि चेरी शेक है, गुड फॉर द डायबिटीज, आप दे सकते हैं उनको। बट नॉट एडिंग शुगर, यू हैव टू ऐड लाइक डेट्स ऐड कर सकते हैं उसमें, या फिर आप उसमें हनी ऐड कर सकते हैं। ओके, सर न्यूट्रिशन डाइट समटाइम्स डोंट इम्पैक्ट ऑन वन बॉडी इफ समबॉडी एल्स रीजन। सर न्यूट्रिशन डाइट समबॉडी डोंट इम्पैक्ट ऑन वन बॉडी समबॉडी एल्स। I don't know the questions, ज़ैनब anyhow, ये है कि हर न्यूट्रिएंट का हर बॉडी के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट होता है बाय सीइंग द फैक्टर्स। एक बॉडी को बहुत अच्छी लग रही होती है, एक को कम लगती है, उसका मेटाबॉलिज्म वो पता है, किसका स्लो मेटाबॉलिज्म है, किसी का फास्ट है। हनी सेट कैसे ठीक हो सकती है? थ्रू डाइट। यू मस्ट टेक ब्लैक पेपर, आप उसका पाउडर बना लें और हनी के साथ उसको खाएं, उससे आपके आई सेट बेहतर होना शुरू हो जाएगी। या फिर विटामिन ए इन रिच, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स हैं, कैरोटीन्स हैं, बीटा कैरोटाइड्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करें, उससे भी आई साइट ठीक हो जाएगी। लेकिन जो मैंने बताया कि ब्लैक पेपर विद हनी बेस्ट ऑप्शन है, तो उसकी आई आप सेट हो जाएगी। इसके अलावा आप मस्ट यूज सम ड्रॉपर्स फॉर लाइक टीयर नेचुरल। पेशेंट विद जॉइंटिस हिस्ट्री, ओके, आई हैव टोल्ड अलाई टू जॉइंटिस हिस्ट्री के लिए बात मरिया, उसका ना कुछ अर्से तक अपने आप को थोड़ा चीट करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेना पड़ेगा, उसके बाद उसको ठीक होगा। विच ऑयल फॉर कुकिंग फॉर अ पर्सन हु हैड हार्ट में कौन-कौन से ऑयल दें? ओके, मल्टीग्रेन्स चपाती जो होती है, ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं या होल ग्रेन चपाती में? बड़ा कैलोरीज़ डिपेंड अपॉन द हाउ मच अमाउंट यू आर टेकिंग। दिस इज़ नॉट द थिंग कि आप लोग एक जैसी रोटी लो, एक जैसी चपाती। इट इज़ थिंक कि एक किसी भी चीज़ के 1 ग्राम कितनी कैलोरीज़ दे रहा होता है। So you can calculate, Muzaffar. Is there any food that help you in growing height? Yes, obviously. By using exercises or by giving the good height. क्योंकि height का मतलब है कि आपकी बोन का एक्सटेंड कर जाना। बोन को आप लोग कुछ एज तक एक्सटेंड कर सकते हो। By using exercises, by giving good diet, तो आपकी हाइट इंक्रीज हो सकती है। अब जैसे कि चाइनीज ने की, व्हाट इज अ गुड डाइट पैटर्न्स फॉर द पेशेंट विद आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस? पहले तो ये कि अगर ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है तो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स होनी चाहिए उसके लिए, विटामिन डी के साथ, और CAC यूज़ करे वो, या फिर ज़िंकाल या फिर कैल्सान डी इस्तेमाल करे। और साथ में जो गुड डाइट है, जो कैल्शियम रिच फूड्स हैं, जैसे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, उनको इस्तेमाल करें। दिस इज़ गुड फॉर दैट पर्सन। तो या फिर वो सर्वेक्स डी का इस्तेमाल, जी नहीं डी का इस्तेमाल। हाँ, अगर उसको लग रहा है कि उसको कमज़ोरी भी है पट्ठों में, तो सर्वेक्स डी का इस्तेमाल कर सकता है। सर हार्ट अटैक बाईपास के बाद ग्रीन वेजिटेबल्स खाने से मना करते हैं। सर क्या हो गया बयान जैसे inhibitions? बिकॉज़ उस फैटेड
को एग वाइट रिकमेंड कर सकते हैं? यस यू कैन, बट लेकिन कोशिश करेंगे कि कितनी पेशेंट प्रोटीन्स कम रखें आप लोग, कम प्रोटीन्स पे लेके आएं, और प्रोटीन अगर लाने भी है तो आप लोग प्लांट सोर्स से लेके आएं। सर हैंड शिवर करते हैं हर टाइम वीकनेस की वजह से, कोई डाइट बता दें? यू मस्ट टेक कैफीन फॉर द हैंड शिवरिंग। अगर ज़्यादा मसला आ रहा है तो आयशा, तो आप कैफीन का इस्तेमाल कर सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइक चॉकलेट है या फिर कॉफ़ी है, उससे ठीक हो जाएगा। तो स्टमक एसिडिटी बचने के लिए कौन सी वेजिटेबल यूज़ करें? अभी स्टमक एसिडिटी बचने के लिए वेजिटेबल का इस्तेमाल नहीं होगा, आपके निवाले कम करने पड़ेंगे, निवाले का साइज छोटा करना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल पहले करना पड़ेगा, और सलाद भी पहले खानी पड़ेगी आपकी, और उससे खाने के साथ सलाद नहीं खानी होगी, और जो खाना खाना है वो भूख रख के खाना पड़ेगा, और उसके बाद लेटना पड़ेगा, और कपड़ों को थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। सर हार्ट डिजीज पेशेंट को किस तरह का वेट लॉस के लिए डाइट प्लान देना चाहिए? तो ऑब्वियसली जब उनको कोलेस्ट्रॉल फ्री आपको और फैट फ्री जो कि उसको हाइपरलिपिडीमिया का ना करे, तो शुगर और मीठा मतलब मिठाई चिकनाई बंद करते हैं, और सॉल्ट भी बंद कर दें हार्ट पेशेंट को। 3 चीज़ें बंद कर दें, बाकी चीज़ें उनको आप लोग बॉइल्ड फॉर्म में दे सकते हैं। तो रमज़ान में वेट गेन हो सकता है। वेट गेन इज़ अ नॉट सो मच ऑप्शन इन रमज़ान, ना मैं इसको रिकमेंड करूँगा अगर करना भी चाहो, बिकॉज़ रमज़ान का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इट इज़ अ फास्टिंग, तो टेक इट एज़ अ फास्टिंग। इसमें वेट कम करो, भूखा रहो, अपनी बॉडी को भूखा रखें। सर न्यूट्रिजनोमिक्स वर्कशॉप किधर होगी? इट विल बी एन वेबिनार, ये ऑनलाइन होगी, पाकिस्तान में होगी। पहले इसका एक वेबिनार होगा तहरीन, उसके बाद इसकी वर्कशॉप होगी। वेबिनार फ्री है, वर्कशॉप पेड होगी। वेबिनार अगले संडे को 3 बजे होगी, जो इसका वेबिनार है, ठीक है? तो उसमें आप सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उमर सर का मैकेनिज्म लिवर में फास्ट स्टोरेज का रिस्टार्ट स्टेज पे हेपेटिक सेल कैंसर में कैसे प्रोग्रेस करता है, लिस्टिंग करो। बच्चे वो आप उसमें उमर इकबाल यू मस्ट नो अबाउट द हमारी जो वर्कशॉप है उसमें आप इसको चेक करेंगे, बिकॉज कि ये न्यूट्रिजेनेटिक्स का क्वेश्चन है। सर आप जॉइंटिस का तो बताया है कि आपकी आवाज़ कट गई थी। यास्मीन जॉइंटिस में आपको ऐसा कि ज़्यादा फूड लेना पड़ेगा, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, गन्ने का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा, जूसेस लें, आपको शेक्स लें, ताकि आपका जॉइंटिस ठीक हो प्रॉपर तरीके से, और हेल्दी डाइट लें, और गर्म चीज़ें इस्तेमाल ना करें ज़्यादा, ठीक है? कॉफ़ी वगैरह, चाय वगैरह का इस्तेमाल कम करें। जब जॉइंटिस ठीक हो जाए उसके बाद आपको इंशाल्लाह हेल्दी पैटर्न, आप खुद हेल्दी होना शुरू हो जाएंगे। तो उसके इंटरवीन किया जा सकता है? सर वो आपके बहुत से जीन्स है बॉडी के अंदर, उसको हम कह सकते हैं। डाइट फॉर हाइपोथायरायडिज्म, हाइपोथायरायडिज्म में ऑब्वियसली आपको देखना चाहिए कि आयोडीन ज़्यादा है, तो आपके आयोडीन के को ऐसी डाइट लेंगे जिसकी वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा फास्ट ना हो। आयोडीन इन जो है वो आपके लिए नुकसान देती है। प्लीज सजेस्ट समथिंग बेनिफिशियल फॉर द एस्थमा पेशेंट। एस्थमा पेशेंट मेडिटेरियन डाइट ले सकते हैं, उसमें वेजीज फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें वो एस्थमा पेशेंट वाले। इसके अलावा अगर साबुदाना इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए बेस्ट है, अगर उन्होंने इससे खा सकते हैं इट्स गुड फॉर देम। इसके अलावा वो ऐसी कोई भी चीज़ ना खाएं जिससे बलगम पैदा होती है, एस्थमा के पेशेंट्स के लिए है। हाँ, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए बैलून एक्सरसाइज, बैलून फुलाएं मुँह से, ताकि आपके लंग्स कैपेसिटी बढ़े, तो बेस्ट है फॉर देम। ओके, सहरी अफ्तारी में कोई चीज़ें गुड हेल्दी ऑप्शंस हैं। सर इफ समवन इज अ एमफिल इन बायोकेमिस्ट्री वी वांट टू परस्यू nutrition as a profession, Iram Iqbal, you must go for the PGD in nutrition dietetics, and after that you must enroll your MPhil program in nutrition dietetics too, along with this site. चाहे आप लोग इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें ऑनलाइन, but you must enroll. After that you must be a dietitian. How much quantity we can take black pepper for eyesight? मेरे बच्चे अब हम समझ पा कर खा नहीं सकती, माम पुत्र थोड़ी खाएंगे ना, उन्हें काला जी नहीं खा सकते, ठीक है, उससे ज़्यादा ना। राबिया मुबीन, सर प्लीज टेल अबाउट द डाइट। अरे भाई बस करो यार, थक गया हूँ मैं भाई। हाइपोथायरायडिज्म में लेस आयोडीन और हाइपो में ज्यादा आयोडीन मिलता है। व्हाई डू लैक्टेटिंग मदर्स फेस हेयर लॉस आफ्टर 6 मंथ? ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट लॉस है बच्चे, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, 3 की वजह से लॉस हो जाता है, दोनों चीजें ऐड करें नहीं होगा। वो चपाती साइज, सीडी साइज, सीडी साइज वो तो 7-8 इंच बोलते हैं, सीडी साइज का होता है। सर आवाज़ कट रही है मुकद्दस सर, जिन वुमेन को हार्मोन इशू होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट सबसे पहले उनको वाइट मीट खाने से मना कर देते हैं। और ऐसा नहीं, मेरे बच्चे उनको पिल से पहले वो वेट लॉस की तरफ लेके आते हैं गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा, ताकि उनका वेट लॉस हो और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके जिनको हार्मोन बैलेंस।
ओके, फ्लूइड रिक्वायरमेंट क्या होगी किडनी पेशेंट के लिए? डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क सिचुएशंस कि वो किस हालत में है शीजा, कि वो डायलिसिस की हालत में नहीं चला गया, वो तो आप चेकआउट कर सकते हैं। दिस इज नॉट बेस्ट ऑप्शन कि आप उसको इंडिकेट करें, लेकिन आप फ्लूइड हर किसी के लिए 3 से 4 ऑन्स है। हेपेटाइटिस के लिए डाइट होगी ऑब्वियसली, a lot of diet options are there hepatitis के लिए। सर वेबिनार के लिए कोई ग्रुप वगैरह? यस, आई हैव मेड अ ग्रुप फॉर वेबिनार। सर टीनेज गर्ल्स के लिए, हाइट ग्रोथ के लिए अच्छी है, बस पूरी बैलेंस डाइट लें, हर डाइट में से लें। रोजाना के हर बच्चा, जितने भी बच्चे यहाँ पे एडिड हैं, वो सब के सब रोजाना के 4 काजू 4 अखरोट खाएं और तकरीबन 7 से 11 बादाम खाएं, सब लोग। अब देखना कैसे हाइट गेन होती है आप लोगों की, और जिनका वेट लॉस होता है या फिर जिनका हेयर लॉस होता है वो कैसे खत्म नहीं होता। डायबिटिक पेशेंट में क्या करें, बता चुका हूँ डायबिटिक के लिए। रिमशा खलील के डायबिटिक का पैटर्न वही होगा कि जो कुछ पहले खा रहे हैं, मिठाई चिकना बंद करना है, बाकी सब चीज़ें हमको अलाउ है। तो मिठाई चिकनाई में ये है कि वो उनके अगर शेक बनाने हैं तो आपने हनी में बना देना है या फिर कुछ साथ। अगर उनको भूख लग रही है, कमजोरी फील कर रहे हैं, तो जौ के दलिए को बना के दूध में और उसके साथ दे सकते हैं। वर्कशॉप जैसे मेरे बच्चे बाद में है, अभी फिलहाल वेबिनार है। ओके, हाँ यार मैं वाकई थक गया हूँ। सर डायलिसिस पेशेंट के लिए फ्लूइड रिक्वायरमेंट कम होंगी इस बच्चे? हाँ बिल्कुल, बता दें मल्टीग्रेन में ज़्यादा कैलोरीज होती हैं बच्चे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज। मेरे बच्चे मुज़ल्फा अनवर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एक 7 इंच की रोटी, एक 10 इंच की रोटी है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द कैलोरीज? मेरे बच्चे, go for the exchange list, go for the calculators and you will get the answer. This is not a big option बेटा, गूगल भरा हुआ इन चीज़ों के लिए। सर हाइट का दोबारा रिपीट कर दें। डेली बेस पे क्या लेना है बच्चे? हेल्दी डाइट लेनी है, और ऐसे करेंगे बादाम खाएं और साथ में काजू खाएं, 7 से 11 बादाम खाएं और करीबन 4 अखरोट खाएं। दोनों के साथ है सर। हाइट के लिए आपने जो बताया था एक बार रिपीट कर दें। बस ये कहेंगे बादाम और अखरोट खाएं, 4 अखरोट और 7 से 11 बादाम, और साथ में अच्छी डाइट लें जी भर के, और साथ में एक्सरसाइज करें। डायबिटिक पेशेंट के लिए सुक्रॉल यूज, यस यू कैन कर सकते हैं, लेकिन सुक्रॉल क्या करना है बच्चे यूज करके, जब आपके पास हनी मौजूद है, खजूर मौजूद है, या फिर आपके पास स्ट्रॉबेरी मौजूद है। गूगल में नहीं मिलता, वो सर्च किया है। मेरे बच्चे आपको देखे ना, मेरी बात सुनो ना, और जब रोटी बना रहे होते हैं मल्टीग्रेन की, तो आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा ना मुज़ल्फा, कि कितना आटा उसमें ऐड करें, कितना बेसन ऐड कर रहे हैं उसमें, कितना आपको, फॉर एग्जांपल जो वेट लॉस के लोग हैं उनको हम लोग बेसन की रोटी रिकमेंड करते हैं सावरन के लिए, और जो कि डिफरेंट डायबिटिक हैं या फिर हार्ट के पेशेंट, उनको मल्टीग्रेन की रोटी रिकमेंड करते हैं हम लोग नॉर्मली। अब क्या जी, मल्टीग्रेन में ओट भी है, बार्ले भी है, और साथ में व्हीट भी है, किस अमाउंट में मिक्स किया गया और कितनी अमाउंट मिक्स किया गया बच्चे, और रोटी का पेड़ा कितना लिया गया, तो मेरे बच्चे इस पर डिपेंड करता है। यू हैव टू सी फॉर द डिफरेंट सर्विंग साइज ऑफ द ओट, बार्ले एंड व्हीट। चिकन इज नॉट गुड फॉर द फीमेल, व्हाट अबाउट दिस? नो, चिकन इज गुड फॉर द फीमेल, आई रिकमेंड चिकन खाएं औरतें, बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आवाज बहुत बारीक है सर। पेशेंट जिनका पैंक्रियाज सर्जिकली रिमूव हो, मेरे बच्चे उनसे फैट रिमूव कर दें, उनकी बॉडी में ऐसा फैट ना है, क्योंकि आपको पता है पैंक्रियाज फैट कम करें, रिमूव ना करें, कम करें, फैट का इस्तेमाल कम करें, और फैट अच्छी दें उनको, ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो बच्चे उनको सप्लीमेंट्स, कौन सी सप्लीमेंट्स मेरे बच्चे, ये आपको देखना चाहिए कि 4 सप्लीमेंट्स, लेकिन पैंक्रियाज वाले लोगों को नॉर्मली हम लोग फैट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, कम करते हैं। सर वो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए डाइट बड़ा सोडियम रिस्ट्रिक्ट कर दें, नमक का इस्तेमाल कम। पैंक्रियाज एंजाइम वगैरह सक्रिएट करता है। ओके यस बच्चों, मैंने कहा कि आपको फैट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, आई थिंक सो ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड नाउ। एनी अदर क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। ओके, बाकी रहा वेबिनार आपका। तो वेबिनार के लिए गालस्ट्रॉम के लिए मेरे बच्चे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करो रहा है, तो उसके लिए आप जो RDN है इसी के अंदर हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, आप सब इसी को ज्वाइन कर लें, और उसी से आपका एक वहाँ पे लिंक में आपका एक गूगल फॉर्म है वो मिल जाएगा, और वेबिनार होगा, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा इनकी ग्रुप में, RDN के ग्रुप में, और आप सब ज्वाइन कीजिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। मैं अभी अपना पोस्टर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप सब अगले मजीद दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा,
और हमारा जो मॉड्यूलेटर होगा फॉर दिस वर्कशॉप, इन दिस वर्कशॉप, तो ये राबिया होगा या उस्मान, इन दोनों में से कोई एक होंगे, ठीक है। थैंक यू सो ओके मच। सर। अब मेरे बच्चे पीसीओस को डाइट के लिए क्यों क्या जा सकता है, लेकिन देख सकता हूँ। थैंक यू सो मच। ओके सर, फिर मैं एक बार इसके बाद हम वेबिनार के अकॉर्डिंग गाइड कर देंगे पार्टिसिपेंट्स को, आप पोस्टर शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। Thank you, sir, for speaking at this webinar. Your presentation on personal nutrition and future aspect was very well received by our members. This information in your speech was both fascinating and timely. Our only regret is that we don't have more time to discuss more on this topic with you. We hope you enjoyed this webinar too, and you will consider returning in future to share more knowledge with us. Thank you so much, sir. Thank you again taking time to speak at our event. Thank you everyone for attending this webinar. We would arrange new activities soon, inshallah. Take care. Allah Hafiz.